students, welcome back to our channel. This is the third part of cell biology. So in the last part we talked about plasma membrane, cell membrane and more other organelles. Now in this part we'll further learn about more of the organelles. First one is the ribosomes. Ribosomes are present either freely in the cytoplasm, साइटोप्लाज्म में वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे और दे आर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दे आर अटैच टू द ER, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दे मे बी अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. So ribosomes are present either freely in the cytoplasm or in the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, if you remember in the last video, I told you already about the endoplasmic reticulum which was originating from the nucleus towards the plasma membrane, towards the end of the cell boundary. ठीक है. So this was the endoplasmic reticulum. So if you haven't watched that part, first go and watch that part. In that portion I told about rough endoplasmic and smooth endoplasmic reticulum. ठीक है. Rough endoplasmic reticulum में there were some balls like structure which is known as ribosomes which were attached to the endoplasmic reticulum. तो जिसमें attached थे endoplasmic reticulum में ये ribosomes, it was known as rough ER. ठीक है. Okay. Now, some ribosomes, let me take the same color. Some ribosomes may be found free in the cytoplasm. These are free, present in the cytoplasm. And these are the free ribosomes. ठीक है. तो ये फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और कुछ कहां पर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है. नाउ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम. फंक्शन, बाय द वे राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस. मेम्ब्रेनलेस वो होते हैं जो जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती. ठीक है. सो राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस प्लस दे आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट यूनिट्स. वन इज द लार्जर यूनिट and the other is the smaller unit. So one is the large unit and the other is the small unit which isn't in your syllabus. You will learn it later in 11th class maybe. Okay. So this smaller unit. So large को अगर हम ऐसे draw करें इस टाइप का structure और small sub unit को भी अगर हम थोड़ा ऐसे करके ड्रॉ करें. सो दिस इज द राइबोसोम्स. ठीक है. मेम्ब्रेनलेस होते हैं. द फंक्शन ऑफ देम इज टू डू प्रोटीन synthesis. Basically they will attach to the mRNA. mRNA क्या होता है वो भी आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. but process is followed to make proteins. तो यहाँ पर राइबोसोम्स ऐसे आते हैं, यहाँ पर बीच में आते हैं mRNA which you will learn about mRNA in your higher classes. mRNA आएगा, यहाँ पर कुछ तो वो कोडिंग डिकोडिंग करके क्या बनाएंगे, फाइनल स्टेप में अ प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड. प्रोटीन यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है. सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम. लेट्स लर्न द थ्योरी आल्सो. Ribosomes, the protein factories, because as I said that their function is to produce protein, make protein. ठीक है. तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, protein factories भी बोला गया है. Again you can see in the diagram also there is a large subunit and a small subunit. They come together to make a protein. ठीक है. ये यहाँ पर mRNA आ गया. mRNA से क्या बन रहा है, ये mRNA आ गया. mRNA से क्या बन रहा है, प्रोटीन की चेन बन रही. ठीक है. So this was the whole process कि कैसे राइबोसोम्स से प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है. ठीक है. नाउ अपीयरेंस, न्यूमरस स्मॉल ग्रैन्यूल्स ईदर फ्री इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू ER.
ER भी कौन से ER में? रफ endoplasmic reticulum. Then the main function is that these are the sites for the synthesis of protein. तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में they help. Okay, let's move towards the next organelle. This is very important of all of them. The mitochondria. Now, what about mitochondria? Mitochondria is a rod-like structure. Mitochondria is somewhat a rod-like structure like this. ठीक है? This is double membranous. इसमें क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं. This is the inner membrane which I am drawing, and this one is the outer membrane. So just let's label it. This one is the outer membrane. This is the inner membrane. So this is about the structure of mitochondria की दिखता कैसे है. So this is the structure which I am drawing. This one is the structure of mitochondria. ठीक है, एक outer membrane है, एक inner membrane है, and there is a space between outer and inner membrane. This is the space between outer and inner membrane which is filled with a fluid like substance. ठीक है, outer और inner membrane में जो space है that is known as intermembranous space. This is known as intermembranous space. Inter का मतलब होता है in between. So in between outer and inner membrane there is a space. That's why we are calling it as intermembranous space. ठीक है, यहां तक आगे समझ. And now we also know that there is a liquid inside it. अभी इसके अंदर जो पोर्शन होता है this is also liquidy. तो बाहर भी लिक्विड है इनर मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर भी लिक्विड है. अंदर जो लिक्विड है that is known as the matrix. This is known as matrix. और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए. The thing is to note is that mitochondria does has its own DNA. तो यहाँ पर इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. So this is the thing to note down. DNA is present. DNA is present in mitochondria. ठीक है, DNA present है. And one more thing which is present inside it is the ribosomes. So ribosomes are present inside the mitochondria. So these are the ribosomes. ठीक है, अभी डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए इज समवट रिलेटेड विद जीन्स एंड हेरिडिटरी. ठीक है, डीएनए कहीं ना कहीं प्रेजेंट है. So we can have an idea that if DNA is present, so the cell may show differentiation and may undergo division. ठीक है, ये हो सकता है. So that's why mitochondria is also known as semi-autonomous. Semi-autonomous. Semi-autonomous का मतलब ये है कि that is independent of division. So it is half independent. Not fully independent, but it is half independent. So it can make more of its mitochondria via division. So mitochondria can divide क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? DNA प्रेजेंट होता है. ठीक है, now more things about it. Let me rub this first. Wait a second. अभी यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होते हैं holes. These are known as porins. So these holes are known as porins, जिससे substances अंदर और बाहर pass on होगा. ठीक है. Now if you can see the inner layer is like मतलब ऐसे घूम रखी है. ठीक है. So it is showing some मतलब अंदर नीचे बाहर अंदर grooves दिखा रही है. These grooves are known as
cristae. So this is known as, which is present in inner membrane. These are known as cristae. Again very important thing. So I am star marking these things कि ये DNA present होता है. That's why it is semi-autonomous in nature, which can differentiate and divide. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात. Now if we dig more into mitochondria and we see the function of mitochondria. अभी if you can see in all the organelles कि उनके कुछ ना कुछ फंक्शंस भी होते हैं. ठीक है, फंक्शंस होते हैं, दैट्स मीन कि सेल्स में जितने भी ऑर्गेनलीज है कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. और इनसाइड द सेल, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस ऑफ माइन, कि जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनलीज होते हैं, ऑल ऑफ देम हैज अ लेबर डिवीजन, और हर एक ऑर्गेनलीज आर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन. तभी हमारी बॉडीज का सब कुछ चल रहा है सही से. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फंक्शन इज परफॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया. अभी मैं बोल पा रही हूँ, मैं लिख पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. एनर्जी मुझे मिली ऑफकोर्स फूड से, बट फूड से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है. फूड होता है पहले डाइजेस्ट होता है हमारी स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल. आफ्टर डाइजेशन इट मेक्स glucose molecules and some other molecules also, but we are talking about glucose. ठीक है, अभी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है. ग्लूकोज गेट्स ब्रेकन डाउन, ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज का कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं. इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं. कौन से बनते हैं ये जरूरी अभी जरूरत नहीं. ठीक है, these molecules enter the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद the mitochondria produces a certain amount of energy in the form of ATP. Very important, इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लो. ATP बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इट इज द एनर्जी. अभी मैं कितने भी लाइफ प्रोसेसेस कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द एटीपी. अभी मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, ऑल द एटीपीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनसाइड माय बॉडी. दैट्स व्हाई my mitochondria is producing certain amount of ATP. That's why I'm getting the energy to talk, walk and stand in front of the camera. Okay, so ATP की full form देख लेते हैं, which is also very important. ATP is adenosine triphosphate. अभी ये क्या चीज है ATP, और ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? अभी ये तो पता चल गया हमें कि खाना हम खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ सेल में कुछ तो सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एंड समथिंग, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एटीपी. बट एटीपी एनर्जी एनर्जी कैसे दे पा रहा है? सो देयर इज द रीजन. ए का मतलब होता है एडिनोसाइन, ट्राई का मतलब होता है तीन क्या है? ट्राई का मतलब है तीन, फॉस्फेट का मतलब है फॉस्फेट. तीन फॉस्फेट ग्रुप्स है, तो तीन फॉस्फेट ग्रुप ऐसे बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं. किसमें? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में. दे मेक अप अ बॉन्ड. अब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, दैट यू विल स्टडी इन अगेन केमिस्ट्री सेशन कि बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं. बट द थिंग इज हियर टू नोट कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी लगती है. अभी हम बॉन्ड जब बनाते हैं, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म अ बॉन्ड. अभी बॉन्ड बना है तो इट मे हैव यूज्ड सम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जो एनर्जी होती है ये बॉन्ड में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है. बॉन्ड में क्या होती है? स्टोर हो जाती है एनर्जी. ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है कि तीन फॉस्फेट which have maken a bond. बॉन्ड फॉर्मेशन में दे हैव स्टोर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. अभी अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी, यहां से एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो कहां जाएगी? बाहर जाएगी.
नाउ इट इज मेकिंग सेंस. एटीपी एटीपी क्या होता है हमें नहीं पता भाई, बट नाउ इट इज मेकिंग सेंस कि अच्छा यहाँ बॉन्ड में स्टोर हुई थी एनर्जी. दैट्स व्हाई इफ आई एम ब्रेकिंग दिस बॉन्ड आई विल गेट एनर्जी. तो अभी फॉस्फेट ग्रुप में जितने बॉन्ड थे वो टूट गए हैं. अब नाउ दे विल प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये होता है एटीपी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो यू शुड नो द डेफिनेशन, you should know the full form of ATP, that is adenosine triphosphate. ये लेक्चर खत्म होते होते you should know about ATP. ATP का पूरा अच्छे से आना चाहिए समझ में इस लेक्चर के बाद. ठीक है, ओके. सो दैट्स व्हाई बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया, दोबारा से देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया is producing certain amount of energy in the form of ATP, which is adenosine triphosphate. ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. वेरी इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये पावर जनरेट कर रहा है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, इफ द क्वेश्चन कम्स कि what is the powerhouse of a cell, so you have to mention that mitochondria is also known as the powerhouse of a cell. अभी आ गया यहां तक समझ में कि पावर हाउस का क्या चक्कर है. ठीक है, so now let's move towards the theory portion also. Structure, it is spherical, rod shaped होता है, डबल वॉल होता है. इसमें भी क्या है, डबल वॉल है. एक ये इनर वॉल है इधर की तरफ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ये आउटर वॉल है. ठीक है, आउटर वॉल में क्या होते हैं, कोरेंस प्रेजेंट होते हैं, जहां से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर. ठीक है, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन, and the space between outer and inner membrane is known as intermembranaceous space. Inter क्यों बोला है, क्योंकि दो के बीच में अगर स्पेस है, that's why it is known as intermembrane space. ठीक है, अभी जो इसके अंदर लिक्विड है that is known as matrix. matrix में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है. ठीक है, then this is the inner membrane. Okay, so the inner wall forms finger like folds. अब इनर वॉल क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, विच इज नोन एज क्रिस्टे. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टे फॉर्म कर लेती है इनर वॉल. ठीक है, फोल्ड होकर. फंक्शन, रिलीज एनर्जी थ्रू सेल रेस्पिरेशन. अभी जो मैं एटीपी वाली चीज बता रही थी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एटीपी थ्रू ग्लूकोज, दिस प्रोसेस एक्चुअली इज नोन एज रेस्पायरेशन प्रोसेस. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, ओके. नाउ एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी इज स्टोर्ड एज एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होती है. ठीक है, नाउ यूनिक ट्रेट क्या है इसका, कंटेन्स इट्स ओन डीएनए. ये क्या करता है, अपना खुद का डीएनए कंटेन करता है. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस. ठीक है, अभी यहां तक समझ में आ गया है. तो दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. इसको सेल और किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद से भी रेप्लिकेट कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर. Okay, now the Golgi apparatus. अभी हम सेल दोबारा से ड्रॉ करते हैं. We haven't understood about न्यूक्लियस, बट मैंने थोड़ा और बताया था कि न्यूक्लियस कुछ होता है. न्यूक्लियस से जनरेट होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया. आफ्टर दैट देयर इज some organelle, one more organelle in addition to this, that is known as the Golgi apparatus. कुछ गोल्जी का apparatus इस टाइप का होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, like this. They also are forming a network like structure. ठीक है, ये देखो
ऐसे होता है गोल्जी apparatus। अब जो भी सब्सटेंसेस, सपोज एग्जाम्पल प्रोटीन, क्योंकि अभी हमने पिछला वाला वीडियो तो देखा है, हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अभी इस वीडियो में हम ये समझेंगे नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये कुछ तो होता है जो प्रोटीन बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के बाद वो कहाँ एंटर करेगा, गोल्जी एपरेटस में एंटर करेगा। गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन का फर्दर मॉडिफिकेशन होगा, प्रोटीन का फर्दर मॉडिफिकेशन होगा। नॉट ओनली जस्ट प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह का भी क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। नाउ गोल्जी एपरेटस में ये सब सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स तो होते हैं, बट देयर आर मोर थिंग्स टू इट। इट हैज सम वेसिकल्स आल्सो। वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स के अंदर, प्रोटीन्स और एनीथिंग व्हिच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द आउटर एनवायरनमेंट और इनसाइड द सेल इटसेल्फ, ठीक है। यहां पर होंगे इनसाइड, सपोज हमारे पास है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज अ वेसिकल। हमारे पास एक वेसिकल है, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अभी वेसिकल will fuse with, let me use the same color only, it will fuse with the plasma membrane। फ्यूजन होने के बाद जो ये प्रोटीन हमारा सिंथेसिस हुआ था ER में, पास ऑन हुआ है गोल्जी एपरेटस में, it will leave the cell and go outward outside to the outside environment। तो अभी यहाँ पर जो भी प्रोटीन फॉर्म हुआ होगा, the proteins formed will go towards the outside of the cell। सिर्फ आउटसाइड नहीं भेजता है, कभी कभार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन की जरूरत होती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटीन कौन प्रोवाइड करता है, these cells only, ठीक है। तो कभी कभार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, और कभी कभार बाहर के एनवायरनमेंट में वो पास ऑन हो जाएगा। सो दैट वाज अबाउट गोल्जी एपरेटस। Okay, now the theory portion. The delivery system मतलब कि ये deliver कर रहे हैं। So the Golgi apparatus is delivering the protein, ठीक है। Okay, the structure hollow tubular structures with membranous walls called cisternae। तो अब ये जो walls है जो मैंने ड्रॉ करी है, that is known as cisternae। Most of the time cisternae is confused with the word cristae which was present in mitochondria, but you don't have to get confused. Cristae is something else which was present in mitochondria, and these cisternae are present in the Golgi apparatus. Okay, plant specifics। ओके, प्लांट्स में क्या होता है, डिक्टायोसोम्स होते हैं which is similar to Golgi apparatus but they are much smaller as compared to animal cells। So and are more scattered। scattered का मतलब क्या होता है कि इधर उधर अवेलेबल होना। In this I have shown a perfect diagram, but in some cases of plants में क्या होता है, if there is a cell, the Golgi apparatus may be scattered, मतलब इधर उधर प्रेजेंट होने को क्या बोलते हैं, scattered वे में प्रेजेंट होगा, and that is known as dictyosomes, which is the characteristic feature of plant cell। plant cells में क्या प्रेजेंट होता है, डिक्टायोसोम प्रेजेंट होते हैं। okay, function concerned with the secretion of enzymes and hormones। enzymes और hormones क्या होते हैं, packed होते हैं और secrete होते हैं towards the outward or outside of the cell or towards the plasma membrane। they package and transport materials within the cell। within the cell लिखा है, but they also transport the material outside the cell also, ठीक है। so this was said about Golgi apparatus also। I hope so that this is also clear in your heads। okay, now comes the lysosome। अभी cell में there are present some particles which are lysosomes। these are also membraneless, so these are
These are lysosomes. Main function of them is to digest. They digest either the viruses or the bacteria. अगर body के अंदर आ जाएंगे तो they will digest, or they can also digest whole cell. मतलब अगर ये पूरा सेल है और ये रप्चर हो जाता है या फिर यहाँ पर कुछ तो अटैक हो जाता है, कुछ तो खराबी हो जाती है, तो लाइसोसोम्स विल मेक श्योर दैट इट डिस्ट्रॉयज इट्स ओन सेल. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग. सुसाइडल का मतलब सुसाइड कर लेना, बैग. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि विच ऑर्गेनेल इज दैट which digests its own cell, या फिर ये पूछा जाएगा कि सुसाइडल बैग जिसको बोलते हैं उसका दूसरा नाम बताओ, तो दैट इज लाइसोसोम. ठीक है. तो लाइसोसोम इफ इट फाइंड्स दैट सेल में कुछ चीज रप्चर हुआ है, कुछ चीज खराब हो रही है, देन इट हैज आल्सो द एबिलिटी टू डाइजेस्ट इट्स ओन सेल. तो खुद का सेल डाइजेस्ट कर लेगा, देन इट विल बी नोन एज द सुसाइडल बैग. ठीक है. ओके. द सुसाइड बैग्स रोल क्या है इनका? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन. इंट्रा का मतलब होता है अपने अंदर, और सेल्यूलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर. कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स. कुछ भी अगर हमें ब्रेक डाउन करना होता है उसमें हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं? फास्टन अप करते हैं टू 2x द केमिकल रिएक्शंस. अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री फॉर दैट. ठीक है. तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एंजाइम्स चाहिए होते हैं. ठीक है. एंजाइम्स बायोलॉजी में इसको एंजाइम बोलते हैं, बट केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं कैटलिस्ट. केमिस्ट्री में दीज एंजाइम्स आर नोन एज कैटलिस्ट. अगर आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो कैटलिस्ट क्या करता है? फास्टन अप करता है रिएक्शन को. बट इन केस ऑफ बायोलॉजी और ह्यूमन सिस्टम में वी कॉल इट एज एंजाइम्स. फंक्शन दोनों का सेम होता है. फंक्शंस डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस. फॉरेन सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? ये नहीं होता विदेश से आया हुआ, बट इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ बॉडी, बॉडी को नहीं चाहिए. सपोज बैक्टीरिया कोई घुस गया, वायरस कोई घुस गया, तो इट विल डाइजेस्ट दैट फॉरेन पार्टिकल. ठीक है. डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. नाउ सेल्फ डिस्ट्रक्शन. दे कैन dissolve their own damaged cell, giving them the name of suicide bag. क्योंकि वो अपना सेल खुद डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो that's why it is also known as suicide bag. ठीक है. नाउ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या होता है ये भी हम पढ़ लेते हैं, बट दे आर ओनली लिमिटेड टू एनिमल सेल. So centrosome and centrioles are only present in animal cell. ये जो ओनली वाली चीजें होती है ना, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको तो स्टार मार्क कर लो. कि जैसे कि प्लांट सेल वॉल होती है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. जैसे ये सेंट्रियोल हो गया, ये भी सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. बाकी वी विल स्टडी अबाउट प्लास्टिड्स आल्सो. प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब किस में रेस्ट्रिक्टेड होता है? प्लांट्स में. ठीक है. तो ये जो ओनली वाली चीजें ये तो स्टार मार्क कर लो. ठीक है. They are found only in animal cells. Structure है, contains two centrioles arranged at right angle. तो ऐसे करके centriole present होता है, which is 90 degree to each other. यहां से क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होता है. This is 90 डिग्री. ठीक है. ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है. It is made up of माइक्रोफिलामेंट्स. माइक्रोफिलामेंट्स, बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग अप अ सेंट्रियोल. ठीक है. अब इसको कवर अप करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स आउटसाइड इट. तो इसको कवर करते हुए देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स, ऐसे इसको कवर कर देते हैं लाइक अ बाउंड्री. ठीक है. The whole overall structure is known as centrosome. The protein plus the centrioles. This structure is known as centrosome. ठीक है. और ये जो 90 डिग्रीज में चीजें हैं इनको बोलते हैं centrioles.
सेंट्रियोल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पूरे स्ट्रक्चर को वील कॉल इट एज सेंट्रोसोम एंड दीज 90 degree one things are known as centrioles. अब centrioles helps in division of cell. So the function is division of cell. क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी में सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड ऑल, सो दैट्स व्हाई the centrioles help in the division of cells. ठीक है, arrange at right angles to each other. right angle में arrange होते हैं. ठीक है, function क्या है? initiates and regulates cell division. Again very important point. by developing spindle fibers. ये क्या करते हैं? spindle fiber develop करते हैं. spindle fibers क्या होते हैं? you will study in your higher classes. ठीक है, स्पिंडल फाइबर डेवलप करते हैं, कुछ तो होता है, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू डू सेल डिवीजन. सो this was it for this video also. We have learned so many things and this was the third part. If you haven't seen the first and second part, first go and watch those parts to have a better understanding. And if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon also so that you never miss any notifications. और जो भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है, you can comment below in the comment section. Other than that, the PDF of this thing will be put it in the description box. Thank you so much.